एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड TQM। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्वालिटी कंट्रोल एंड TQM। TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी क्या होता है, कैसे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्किल क्या है, डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM देखेंगे। देन there are certain rules that company are following for maintaining the quality। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम 5S एंड 6 सिग्मा का रूल्स देखेंगे एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन, द जापानीज प्रिंसिपल, इसको भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। फर्स्ट इज क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी? हम हर चीज़ में क्वालिटी खोजते हैं, आइदर फूड प्रोडक्ट, vegetables, fruits, any product, any items, we want quality। so define कैसे करेंगे quality को? means quality is a fitness for use, जो fit हो use के लिए वो quality है। the totality of features and characteristic of a product or service that bear on its ability to satisfy a given need। quality involves meeting customers' need, preference and exceeding it। quality also encompasses people, process and environment। so these are the top definition of quality, that what the fit for the customer, that is the quality। हम ज़्यादा स्टैंडर्ड, कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का दे सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करते हैं क्वालिटी के लिए, that we will see। so why quality control? Control is a system for measuring and checking, that is inspecting a phenomenon। it suggests when to inspect, how often to inspect and how much to inspect। in addition it incorporates a feedback mechanism which explores the cause of poor quality and takes corrective action। एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्वालिटी को चेक करने के लिए वी नीड वन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। वो इंस्पेक्शन करेंगे हर फिनोमेनन का, और कुछ उसके अंदर कोई करेक्टिव एक्शन लेना हो तो लेंगे। सो कंट्रोल differs from inspection as it has certain quality characteristic of an item, compares the same with prescribed quality standards and separates defective item from non-defective ones। Inspection, however, does not involve any mechanism to take corrective action। so inspection का काम होता है to check the product or service that according to the plan it has been made or not। manufacturing process is a repetitive process depending on both controllable and uncontrollable factors। this produces deviation in quality of the product। quality control is the process of verification or correction of the quality of the product when deviations are found to be more than expected। we have the lower limit and upper limit for the size of any product। अगर उस डेविएशन के अंदर में अगर हमारा फिट बैठता है कोई प्रोडक्ट, अदरवाइज कुछ करेक्शन करना पड़ा उस प्रोडक्ट को, फॉर दैट डेविएशन वी विल डू टू मेक दैट, टू अचीव दैट क्वालिटी। दिस इज व्हाट द कंट्रोलिंग पार्ट, कि हम कंट्रोल कर रहे हैं डेविएशंस को, हमारा मैक्सिमम डेविएशंस एंड मिनिमम डेविएशन के बीच में ही कोई भी प्रोडक्ट लाई करना चाहिए। दिस इज द कंट्रोलिंग पार्ट। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी।
परफॉर्मेंस, फीचर्स, कॉन्फॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, एस्थेटिक एंड परसीव्ड क्वालिटी। ये कुछ डायमेंशंस हैं क्वालिटी के। परफॉर्मेंस इज ए मेजरेबल प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग। कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, आइदर दी प्रोडक्ट और सर्विस related to function. Features, these are added characteristics that enhance the appeal of product or service. Conformance, it is the virtue of a product meeting specification or industry standard. That is conformance. एक अनुरूप कहा जा सकता है conformance, एक रूप में। Reliability, it is a consistency of a performance over time. ज़्यादा दिन तक टिका रहे तब हम कह सकते हैं कि हम अच्छा क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है। ड्यूरेबिलिटी, इट इज़ टाइम स्पैन showing useful life of a product or service. Serviceability, it is property concerned with the process of resolution of problems and complaints. Aesthetics, it is the sensory characteristic of a product or service. Perceived quality, it is subjective assessment of quality based on the perception of consumer related to the product. ये है उसका perceived quality. These are the dimensions of quality जिसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटी को परखते हैं कि हाँ इस कारण सभी चीज़ से अगर फिट बैठ रहा है देन इट इज़ ए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस. परफॉर्मेंस, फीचर्स, कॉन्फॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड परसीव्ड क्वालिटी. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द क्वालिटी का. ये हमारा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हमारा क्वालिटी लाइक करता है धीरे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इंस्पेक्शन पार्ट. जितनी बार हम इंस्पेक्शन करेंगे उतनी बार हमें कुछ डाउट, कुछ वेरिएशंस मिलेगा. टू मिनिमाइज दैट वेरिएशन वी डू मैक्सिमम इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और माई सर्विस. इंस्पेक्शन करने के बाद हम उसमें क्वालिटी कंट्रोल. नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल के बाद आता है क्वालिटी इंश्योरेंस कि अगर क्वालिटी इंश्योर्ड है हमारा कि नहीं है. इसके बाद आता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी, नॉट द प्रोडक्ट, नॉट द सर्विस, ऑल द डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, plant layout, process, everything comes under TQM. Then the Lean dash Six Sigma. इन दोनों का वेरिएशन में जितना कमी हो we follow this Lean Six Sigma. And lastly Lean Six Sigma. Without any variations हम इसे लेके चलते हैं लीन सिक्स सिग्मा. तो इस तरह से हमारा एक तरह का क्वालिटी का ये सीढ़ी है. तो आज के डेट में कंपनीज जो फॉलो कर रही हैं मेनली दे आर टारगेटिंग टू फॉलो दिस लीन सिक्स सिग्मा, जिसका मतलब है वेरी लेस वेरिएशन विथ गुड क्वालिटी. क्वालिटी सर्किल. एक्चुअली 1979-80 के दशक में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टडी ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 और fewer and their supervision. Quality circle originated in Japan where they are called quality control circle. तो इंस्पेक्शन के बाद हम देखे थे लास्ट स्लाइड में हमारा इंस्पेक्शन के बाद आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल. उसी के अंडर में ये क्वालिटी सर्किल बना. एक और एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन और ने सेटअप किया धीरे धीरे क्वालिटी के रिस्पेक्ट में. ये कई सारे स्टेप्स उठाए गए.
उसी का एक पार्ट है हमारा क्वालिटी सर्किल, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रेन करना और उनको सुपरविजन के लिए रखना ताकि हर जगह वो क्वालिटी को चेक करें. So this was actually developed by Japan. Quality circle are informal groups of employees who voluntarily meet together on a regular basis to identify, define, analyze and solve work-related problems. Work-related problems का supervision कुछ group of people के द्वारा, that is quality circle का एक काम था. Usually the members of a particular team means quality circle team, should be from the same work area or who do similar work, so that the problems they select will be familiar to all of them. In addition, interdepartmental or cross-functional quality circles may also be formed. An ideal size of quality circle is 7 to 8 members, but the number of members in a quality circle can vary. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वालिटी सर्कल्स के ग्रुप के पीपल बनाया जाता है ताकि वो हर उनको एक डिपार्टमेंट फिक्स किया जाता है ताकि सभी जगह से वो क्वालिटी का इंस्पेक्शन करें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल: promote job involvement, create problem solving capability, improve communication, promote leadership qualities, promote personal development, develop a greater awareness for cleanliness, develop greater awareness for safety. तो ये मेन मकसद होता था फॉर मेकिंग दैट क्वालिटी सर्कल. उनको जॉब, सबके लिए एक जॉब इन्वॉल्व हो, सॉल्विंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी हो, कम्युनिकेशन आपस में, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रेटर अवेयरनेस फॉर क्लीननेस, साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना. ये सब क्वालिटी सर्कल के टीम ऑफ मेंबर्स का काम है जो ये करते हैं. एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन में ये टीम सेलेक्ट किया जाता है दैट कम्स अंडर द क्वालिटी सर्कल्स. तो नेक्स्ट आता है हमारा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQ और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM and Six Sigma are sweeping culture change efforts to position a company for greater customer satisfaction, profitability and competitiveness. We all know कि एक प्रोडक्ट को बनाती है कई सारी कंपनियां, तो कई सारी कंपनियों का प्रोडक्ट हम हर एक कस्टमर सारी जगह से नहीं ले सकते, सारी प्रोडक्ट नहीं ले सकते. उससे जो प्रोडक्ट चाहिए, जो उसको पसंद हो, जो मार्केट में सबसे अच्छा है, वही कस्टमर खरीदते हैं. So TQM and Six Sigma are the most advanced version of any making quality in organization. आज के डेट में TQM सबसे ज़्यादा फॉलो कराए जाते हैं. जो मल्टी ब्रांड कंपनीज हैं, MNC कंपनीज, इन सब में TQM फॉलो किया जाता है. TQM Six Sigma. और किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप पूछे कि क्या आप Six Sigma फॉलो करिए जाते हैं या TQM, अगर हाँ वो फॉलो कर रहे हैं देन दे आर वेरी गुड maintaining the quality of the company. They are maintaining the standards of everything. So this is a kind of a logo कि TQM है, ये Six Sigma ये एक तरह का लोगो है कि कंपनी एक तरह का स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं. TQ may be defined as managing an entire organization so that it excels on all dimensions of product and services that are important to the customer. तो जैसा कि मैंने कह रहा था कि ये सभी का मिला कर ये देखता है, नॉट ओनली द प्रोडक्ट सर्विस बट ऑल डायमेंशंस. वी ऑफन थिंक ऑफ फीचर व्हेन वी थिंक ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस. TQ इज अबाउट कॉन्फिडेंस, क्वालिटी, नॉट फीचर्स. तो मेनली टोटल क्वालिटी हमारा क्वालिटी के ऊपर ही है, कॉन्फर्मेंस है, उसके फीचर्स में नहीं ध्यान देते हैं. और TQ का क्या काम है? मीटिंग और कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को बहुत ध्यान देना. डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम, फ्रीडम फ्रॉम फेलियर का बहुत कम चांस, मीन्स मिनिमाइजिंग द डिफेक्ट्स.
consistency means reduction in variation. We have the upper variation, lower variation. तो एक लाइन में तो हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारा वेरिएशन ज़रूर कुछ ना कुछ रहता है. अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट हर चीज़ सर्विस प्रोवाइड वी ट्राई कि हाँ इस तरह सर्विस प्रोवाइड किया जाए कस्टमर को. वी ट्राई आवर बेस्ट, बट देयर आर सर्टेन वेरिएशंस. तो वेरिएशन जितना ज़्यादा रिडक्शन हो, ये थिंकिंग रहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू. सो आई बिलीव इन द एम्प्लॉयज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये जागरूक करना ज़रूरी है. I believe that people doing the work are best able to improve it. I believe that everyone is responsible for quality. So these are the work of the company which is having TQM and Six Sigma. तो TQM का ये मेन काम है, किस तरह से वो हर चीज़ पे ध्यान देती हैं, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो. नेक्स्ट कम ऑफ द काइजन मॉडल. काइजन एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है. यहाँ पे कार्टून से हम समझ सकते हैं कि दिस मैन इज डूइंग सर्टेन हार्ड वर्क, रादर दिस मैन इज जस्ट पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट विथ अ फिंगर एंड ही इज डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क फॉर कैरिंग दिस लोड. एक तरह का एग्जाम्पल दिखा रहा है कि इजली कुछ मेथड इम्प्लीमेंट करके हम इस वर्क को इजी वे में कर सकते हैं. सो काइजन इज बेसिकली अ जापानीज वर्किंग बेसिस. एक प्रिंसिपल है उनका. दिस इज द लेटर ऑफ जापानीज, जिसको कांजी वर्ड कहा जाता है. कांजी एक तरह का स्क्रिप्ट होता है जिसका ये मीनिंग होता है काई, ये होता है जेन. काई का मतलब होता है चेंज, जेन मीन्स गुड. ये दो वर्ड मिलकर बना है काइजन, मीन्स कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. So Kaizen is a Japanese means improvement. Kaizen refers to activities that continuously improve all functions and involve all employees from the CU to the assembly line workers. सबका improvement from labor to CU. It also applies to process such as purchasing and logistics that cross organization boundaries into the supply chain. Means ये purchasing and logistics को भी ध्यान में रखकर उनके अंदर भी improvement. It has been applied in healthcare में अप्लाई किया है, साइकोथेरेपी में, लाइफ कोचिंग, गवर्नमेंट, बैंकिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज. सब जगह काइजन का एक नियम लागू किया है. बाय इम्प्रूविंग स्टैंडर्डाइज्ड एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, काइजन एम्स टू एलिमिनेट वेस्ट. सभी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मेन काम रहता है कि वो एलिमिनेट करें वेस्ट को या रिड्यूस करें वेस्ट को. दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल जो जापान के थ्रू आया था. एक इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में देखा जाए तो ये काइजन का भी रूल्स एक जगह फॉलो करने का आया है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ PDCA साइकिल. मीन्स ये 5 तरह से काइजन का वर्क होता है. प्लान, डू, चेक, एक्ट. दिस इज द PDCA साइकिल. Plan, daily routine management for the individual and or the team. Problem solving process, project management, continuous development, vendor development, human resource development, new product development, process trial. So plan, do, check, act. इसके अकॉर्डिंग में हमारा काइजन का मेन रूल्स काम करता है. आप क्या प्लानिंग किए, उसको कैसे एक्ट कर रहे हैं, चेक करना उसको, और फिर एक्ट में लाना कि हाँ सही चीज़ हो रहा है, उस प्रोसेस में उसको ला देना. 5S इज द नेम. नेक्स्ट आवर 5S एक ये भी जापानीज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से आया था. 5S का टर्म एक्चुअली ये 5S सेरी, सिस्टोन, सिसो, सिकात्सु एंड सित्सु, ये 5 वर्ड है. इसका मतलब होता है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन.
ये 5S का मेन बेसिक प्रिंसिपल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ये भी एक जापानीज बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने खोजा था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया वर्ल्ड वाइड। सो दिस 5S का ये देखते हैं व्हाट इज सॉर्ट। जैसा कि पिक्चर में समझ में आ रहा है, एक तरफ किस तरह से ये अननेसेसरी हर जगह बिखरा हुआ है, यहाँ पे एक अरेंज है, सॉर्ट किया हुआ है। सो रिमूव unnecessary item and dispose them properly, make work easier by eliminating obstacle, reduce chance of being disturbed with unnecessary items, prevent accumulation of unnecessary items, evaluate necessary items with regard to cost or other factors. This is the sort. Then set in order. You can see this image. यहाँ किस तरह से disorder है, यहाँ किस तरह से order में set है. Arrange all necessary items so they can be easily selected for use. Prevent loss and waste of time by arranging workstation in such a way that all tooling equipment is in close proximity. Make it easy to find and pick up necessary items. Ensure first come first served basis. This is the set in order. Second step. Third is our sign. Sign means you can see the cleanness here and you can see the here. सो इस तरह का क्लीननेस ताकि साइन करता रहे। क्लीन योर वर्क प्लेस कम्प्लीटली, यूज क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, प्रिवेंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट डिटोरिएशन, कीप वर्क प्लेस सेफ एंड इजी, कीप वर्क प्लेस क्लीन एंड प्लीजिंग टू वर्क इन। सो दिस कम्स अंडर दिस साइन। मीन्स ये 5S को फॉलो करना एक कंपनी का ज़रूरत पड़ गया। स्टैंडर्डाइज you can see here daily, weekly, monthly standards का checking. Standardize the best practice in the work area. Maintain high standard and workplace organization at all times. Maintain orderliness. Maintain everything in order and according to its standard. Everything in its right place. This is the standardized term. And last is our sustain. You can see the image here कि एक कुछ मशीनरी से हमारा ऑयल स्पिल हो रहा है. He's cleaning. And he is also collecting it and maintaining the machinery. So rather cleaning, he is collecting to keep in working order. Also translate as do without being told. अगर दिखाई दिया तो तुरंत हम उसको कर देंगे. Performs regular audits. Training and discipline. Training is goal-oriented process. Its resulting feedback is necessary monthly. So these are the 5S जिस कंपनी को ये 5S भी फॉलो करते हैं। रादर भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हम विजिट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है वी आर फॉलोइंग दी 5S प्रिंसिपल ऑफ 5S, दैट मीन्स ये चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। एंड वी ट्राई टू फॉलो दिस 5S standard. Next is our Six Sigma. Six Sigma जैसा कि एक टर्म पहले भी आया है, एक तरह का ये लोगो दिया जा रहा है स्टैंडर्डाइजेशन में। एक्चुअली इसका इन्वेंट्री 1995 में ही प्रेजेंट था, जिसमें था कि वेरिएशन रिडक्शन मेथोडोलॉजी। एनी हाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस वेरिएशंस। नेक्स्ट इज आवर लीन मैन्युफैक्चरिंग 2000 प्रेजेंटली चल रहा है। वैल्यू इम्प्रूवमेंट अप्रोच and Lean Six Sigma. This approach combines the individual concept of Lean and Six Sigma and Lean का भी follow करना और Six Sigma का भी, and recognizes that both are necessary to effectively drive sustained improvement. यह evolution of Six Sigma है। The company first of all is the Motorola, जिसके क्वालिटी मैनेजर बिल स्मिथ ने इस चीज़ को डेवलप किया था 1985 में। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ही वाज अचीव्ड फॉर द बैल्ड्रिज अवार्ड। ये एक तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का अवार्ड भी है जिनको मिला था मोटोरोला बिल स्मिथ को फॉर डेवलपिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड फॉलोइंग द सिक्स सिग्मा रूल। सिक्स सिग्मा रियलाइज heavily on advanced statistical methods that complement and reduce process and product variations.
It is a new way doing business that would eliminate the existing defects efficiently and would prevent defects from occurring. So this is the meaning of Six Sigma. Exactly इसमें होता है to prevent defect and next है कि फिर defect occur means वो दोबारा होना नहीं चाहिए. Define the high level project goals and the current process, measure key aspects of the current process and collect relevant data, analyze the data to verify cause and effect relationship, determine what the relationship are and attempt to ensure that all factors have been considered. Next is our improve or optimize the process based upon data analysis, control to ensure that any deviations from target are corrected before they result in defects. So this is the meaning of Six Sigma. ये हमारा सिंबल है. सिम्बॉलिक अगर पेनिट्रेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज़ हाईली क्वालिफाइड, वेल मेंटेनिंग क्वालिटी वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है. दैट मीन्स ये उनके 5 डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, इस पे ये काम कर रहे हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिक्स सिग्मा. So we have seen today we have seen our the quality control and TQM. किस तरह से क्वालिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया. स्टार्टिंग में हमारा किस तरह से आया, कैसे कैसे लोगों फॉलो करके आज हम TQM और सिक्स सिग्मा तक पहुँचे हैं. दिस इज लास्ट पार्ट कि लीन सिक्स सिग्मा एंड सिग्मा को आज सिक्स सिग्मा को कंपनी फॉलो कर रही हैं. शुरू में किस तरह से इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, देन TQM, लीन क्यू एंड सिक्स सिग्मा. धीरे धीरे हमारा एक ही काम रहा, वेरिएशंस को मिनिमाइज एंड वेस्ट को रिड्यूस and defects should not be occur again and again. ये हमारा मेन मोटो था, तो मेंटेनिंग द क्वालिटी. एक्चुअली क्वालिटी को इसी तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. सो होल पार्ट वी हैव सीन. हालांकि टॉपिक ये और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको शॉर्ट में इस तरह से करना पड़ा फॉर अ शॉर्ट टाइम. I hope you have understand this topic. Thank you for giving time.